श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे वेहा पोता परवान। जिन बाशक नेत्रै कत्या कर नेहि ताण। जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान। 14 रतन निकालन की तोन चालान। घोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलान। धनख चढ़ायो सत दा जस हुंदा बाण। काल विच तू अंधार सा चढ़िया रे भाण। सत हो खेत जमाया सतों शाबान। नेत्र सोई तेरी है क्यों मैदा खान। चारे कुंडा सूजियस मन में शब्द परवान। आवा गुण निवार्यो कार नदर निशान। उतरिया उतार ले सो पुरख सुजान। झखड़वाओ ना डोलई पर्वत मेरान। जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान। क्या सालाही सच्चे पातशाह जा तू सुबड़ सुजान। दान जे सतगुर भावसी सो सते दान। नानक हंदा छतर सिर ओ मत हैरान। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान। प्यो दादे जे वेहा पुत्रा परवान। साहिब सच्चे पातशाह कुल कायनात दे सांझे रहबर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां दा ओट आसरा तकदे होया समूह गुरमुख जन गुरमुख प्यारे अमृत वेले तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरनां दा ओट आसरा तकदे होया सतगुरु सच्चे पातशाह जी की वडियाई करदे होया साहिब जी दे रब्बी गुणां नूं धारण करने लई गुरु की असीस प्राप्त करने लई सतगुरु की अमृत वेले तो निकी गोद का आनंद माणते पे हैं। सो आओ जी बाजा वाले पिता शाहे शहनशाह दशमेश पिता जी दे वल्लों जो कृपा की हुई है फतेह की दात सबे ही प्यार सहित सतगुरु जी नूं शीश झुकाउंदे हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए करो जी फतेह प्रवान।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਸਨ, ਜੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਈ ਗਵਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਦਾ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੀ ਵੇਹ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਿਓ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਦੱਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ,
कि निगुरे दे हथों तो गुरु भी धारण नहीं किया तो मेरी सेवा करता रहे। सिर्फ आही गल जब उस साधु के मुंह तो सुनी तो बड़ा मन उत्ते दुख बड़े चोट लगी इस गल की कि वाकई मैं निगुरा है, मेरा गुरु नहीं है। बस वैरागी हो गई। उस दिन तो मन के अंदर प्यार उत्पन्न हो गया कि कोई ना कोई इदा का हीला वसीला हो जाए कि जिहदे विच मैनू उस मालिक परमात्मा की संगत प्राप्त हो जाए। फिर गुरु अंगद साहब महाराज जी की सपुत्री गुरु अमरदास महाराज जी के भतीजे दे नाल विआही हुई सी। एक दिन अमृत वेले, क्योंकि पिता जी के घर च जो अभ्यास बनया सी, अमृत वेले अपने सहुरे घरे भी वो ही काम रखिया। आसा जी की वार का पाठ करते पे सन। सहुरा होने के नाते क्योंकि मन के उस दिन तो चिणक लग गई ना, जिस दिन तो उन्हें कह दिता साधु ने कि पहला गुरु धारण कर। मन के प्यार, मन के व्याकुल होए पए कि कोई ना कोई इदा का पूरा सतगुरु मिल जाए कि मेरी जिंदगी का पार उतारा हो जाए। पुछना किया कि बेटा पुत्र इस वेले जी तुम बाणी पढ़ते पैसे किन्ना दी? कहने लगे मेरे पिताजी दी। फिर नाल गुरु अमरदास जी ने उन्होंने संग किया, कहते मैनू मिलवा दो ताकि मैं मिल के कुछ ना कुछ सीख लवा। बस जिस दिन तो गुरु अंगद साहब महाराज की संगत विच आए और ऐसी रंगत चढ़ी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साहब जी की सेवा करदे करदे उन्हों का रूप अवतार धारण कर लिया। जो गुरु अंगद साहब महाराज गुरगद्दी बख्शते हैं तो उदों भी बड़ा विरोध होंदा कईयां दा। गुरु पुत्रा का दासू जी दातू जी ने तो इथों तक दावेदारी कर दी कि मैं हाँ गुरु। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रातों रात छड़ दिता उस गद्दी। जदों दीवान में बैठे सन गुरु अमरदास महाराज ते बाबा दातू जी आउंदे ने, पहुंचते लक दे विच पैर मारिया ते इन्नी निमरता गुरु अमरदास महाराज जी दे अंदर कहने लगे, बाबा कहने लगे कि मेरे इन्हां बुढ़िया हड्डां दे नाल तुहाडे ते कोमल जे पैर जड़े ने, बड़ी इन्हां नूं तकलीफ होई होएगी, लियाओ मैं मालिश कर देवां, मैं घुट देवां तुहाडे इन्हां चरणां नूं, इन्हां पैरां नूं। देखो एक समय का गुरु है। ते बाबा दातू जी ने पिठ दे विच लक विच जदों लत मारी, गुरु अमरदास महाराज बिल्कुल नीवे हो गए। नीवे तो भावे मन करके झुक के दीवान वाले चले गए। कहने लगे लियाओ मेरे इन्हां बुढ़िया हड्डां दे नाल तुहाडा इह पैर चरण वज्जिया, ये पता नहीं कोमल जे पैर तुहाडे जिहड़े ने किन्ना को तकलीफ विच होणगे ते मैं इन्हां नूं घुट देवां, इन्हां दी मालिश कर देवां। शर्म दे नाल नीमा पै गया। कहने लगे जिन्हों मैं जलील करता पिया सी, जिन्हां नूं मैं इन्ना मंदा बोलता पिया सी, सारी संगत विच मैनूं इन्ना मान दे दित्ता। तुसीं कोई जरूरी नहीं हुंदा कि हमेशा अगले दे गाली पै जाना। कई बार शब्दां दे बोल ही ऐसे हो जाते हैं कि अगला शर्म दे नाल पानी पानी हो जाता सब दे सामने। गुरु अमरदास महाराज ने उहदे कोई चपेड़ नहीं सी मारी। जदों उन्होंने लत मारी, पैर मारिया, सिर्फ एक शब्दां दे बोल सन कि तुहाडे चरणां नूं मेरे इन्हां बुढ़िया हड्डां दे करके बड़ा दुख लग्या होएगा, लियाओ मैं घुट देवां, मालिश कर देवां। शर्म दे नाल पानी पानी हो गया उत्ते बाबा दातू जी। ते इत्थे बाबा सत्ता जी कहते कि सो टिक्का सो बहना उसे तख्त दे उत्ते गुरु अमरदास महाराज अज शोभित ने। जिहड़ा तख्त गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोलों गुरु अंगद साहब जी नूं प्राप्त होया सी, ते ओ तख्त इदां ही प्राप्त नहीं होया, गुरु दी सेवा करके प्राप्त होया। ब्यासा दरिया तो पानी दी गागर चक के सतगुरु सच्चे पातशाह दा रोजाना इशनान कराउण दे लई गुरु अंगद साहब महाराज गुरु अमरदास महाराज ने यह सेवा निभाई। भावें मीह पैंदा सी, भावें हनेरा सी ते भावें ठेडे लगदे सन, दुनिया वाले ने कह छड्डिया सी, ताने मेहणे मार मार के कौमतां ला ला के सानू अज कोई कुछ कह देवे, पहली गल असीं नमोशी मनदे उत्थे छड़ जांदे। पर गुरु अमरदास महाराज जी ने दुनिया दी गल्लां सुन के भी अणसुणिया कीता।
जे अणसुणिया कर लिया। अज बाबा सत्ता जी नूं ये गल कहनी पई कि जो गुरु नानक साहब महाराज जी का स्वरूप सी, जो गुरु अंगद साहब जी का स्वरूप सी, ओही अज गुरु अमरदास महाराज जी का स्वरूप है। प्यो दादे, दादा गुरु नानक साहब महाराज, प्यो धर्म दा गुरु अंगद साहब महाराज, अगे ओहो जे पोता जिहड़ा है वो गुरु अमरदास है। कहने लगे जो कार्य गुरु नानक साहब ने किया, जो कार्य गुरु अंगद साहब करके ओहो ही कार्य आज गुरु अमरदास महाराज करते पे। इत्थों तक जो धर्म की दुनिया दे विच अनेकां ऐसियां भैड़ियां परंपरावां सन, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने अगे बढ़ के कानून पास करवाया। सती प्रथा जी चलती सी कि पति खत्म हो गया, मौत हो गई, ते औरत उन्होंने पति की चिखा दे विच नाल ही साड़ दिता जांदा सी। बादशाह समय दा हाकम अकबर उन्होंने कहना कीता कि इस सती प्रथा नूं हमेशा लिए खत्म कर दे, क्यों कोई किसी दे लिए मरे। ये जिहड़ा कूड़ है, ये जिहड़ा घटिया ते घिनौनी हरकत है, इहनूं बंद कीता जाए। ते कानून पास करवाया गुरु अमरदास महाराज जी ने समय दे हाकम अकबर दे कोल। सब तो पहला गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने सती प्रथा का विरोध किया। बाद में अंग्रेजों के टाइम से भी एक चंगी तरह मान्यता दी गई। उस समय कल्ले पंजाब में ही नहीं, गुरु अमरदास महाराज ने पूरे भारत देश के अंदर इस कानून की मर्यादा, कानून को लागू करवा दिता। ते कल्ला पंजाब ही नहीं, पूरे भारत के अंदर एक एक स्टेट के विच ये गल लागू कर दी जाए कि कोई भी स्त्री नूं चिखा दे विच नहीं साड़ना। लंगर की मर्यादा एक बराबर कर देते। इथों तक गुरु अमरदास महाराज जी ने कह दिता कि जिन्हें संगत करनी है उन्होंने पहला पंगा दे विच बैठ के लंगर छकना पवेगा। लंगर छकाउण दा वजह कारण यही सी कि जिन्हां नूं नीवें समझिया जांदा सी, जिन्हां नूं हमेशा दुरकारिया गया सी, उन्हां नूं बराबरता बख्शनी। जिन्हां नूं हमेशा दुरकारिया गया सी, माड़ा कहा गया सी, उन्हां नूं बराबरता दिवाउणी। ते गुरु अमरदास महाराज जी ने संगत दे विच इस गल दा उच्चारण हुक्म कीता कि जिन्हें मेरे कोल आना है पहला गुरु के लंगरां विच बैठ के लंगर छके, प्रसादा छके, भोजन दी सेवा करे, फिर वो मेरे कोल आवे। एहो जे गुरु सन गुरु अमरदास महाराज। फिर इशनान करन दे लई बाहरों आईयां संगतां कि कोई जात पात ऊंच नीच दा वितकरा जिहड़ा है एक बौड़ी पटवाई ते बौड़ी साहिब दे अंदर सारिआं नूं इशनान करन दा संदेश दिता। बाबा सत्ता जी कहते कि जो कार्य गुरु नानक साहब ने किया, जो कार्य गुरु अंगद साहब महाराज करते रहे, वो ही कार्य आज गुरु अमरदास महाराज करते पे। ते मैं उन्हां दी वडियाइयां करके, उन्हां दे गुण गा गा के अपने आप को सुभागा समझदा हां। कहते जिन बाशिक नेत्रे कत्या कर देही ताण, जिन समुंद बिरोलिया कर मेर बादान। कहते कि जिद्दां समुंदर नूं रिड़कण दे वास्ते वो बाशिक नाग नूं रस्सी दे रूप विच वरतिया गया, इदां ही इस मन रूपी समुंदर नूं रिड़किया सतगुरु सच्चे पातशाह ने शब्दां दे राह। कहंदे कि इस मन नूं जिहड़ा पर्वत वांग कठोर सी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी बाणी, गुरु अंगद साहब महाराज जी दी बाणी, फिर ओदा सिद्धांत, ओदा निचोड़ अपने हिरदे च वसा लिया। इस मन गुरु दे शब्द दे राही इदा रिड़किया, 14 रत्न निकालिया कीतो चानान। कहंदे फिर मन दे अंदरों शब्द रूपी किरपा दे नाल दया रूपी रतन कट के संगत दे विच रख दिता। मन च इन्नी निमरता, मन च सारे दे इन्ना प्यार, सारे दे इन्ना सत्कार। कहंदे कि जे गुरु दे शब्द नाल जुड़ गए, जिद्दां समुंदर दे विच उन्होंने काफी कुछ कढ़िया, इदा ही गुरु के शब्द के नाल जुड़ के गुरु अमरदास महाराज वो नाम दा चानण, वो ज्ञान दा सागर पूरे संसार अंदर रब्बी सुनेहा भेजा। घोड़ा की तो सहजदा जत कीओ पलाण, धनक चढ़ायो सत दा जस हंदा बाण। कहते कि गुरु अमरदास महाराज अंदर इन्नी सहजता, इन्नी निमरता ज्यादा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जिथे सेवा दे पुंज सन, जिथे नाम दे पुंज सन, जिथे हिरदे तो बड़े कोमल जे सन, जिथे सती प्रथा वेख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਰਾਓ ਵਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ 21 ਵਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਰਵੇ ਜਦ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਤ ਕੀਓ ਬਲਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮੀ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੀ ਐਸੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ,
ਜਿਹੜਾ कोई सतगुरु सच्चे पातशाह जी की संगत आ जाता सी मुड़ के फिर वो साहब सच्चे पातशाह जी का हमेशा वास्ते मुरीद बन जाता सी। एक माई दास करके ब्राह्मण सी जिन्हें बड़ी ईर्खा की साहब दे नाल, कहने के शास्त्रां दी उल्लंघना करते पे, पुरातन धार्मिक ग्रंथां दी उल्लंघना करते, ये जेड़े नीवे सन इन्हां नूं तुसीं साडे बराबर बिठाउणा शुरू कर दिता। इन्हां दा काम सी साडे घरां दे विच आण के झाड़ू पोचे करने, पर ये तुसीं सब कुछ उल्ट कर दिता, मर्यादा दा घाण भर के रख दिता। ये बर्दाश्त तो बाहर दी गल्लां ने। पर जिवें गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल बैठदे हन सतगुरु सच्चे पातशाह उहदे नाल विचार गोष्ठी करदे ने माई दास दे नाल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे जीव तो मुखड़े तो बोलिया होया एक एक बोल जिहड़ा है उहदी जिंदगी नूं बदली जा रहा है। अंत नूं की होया, माई दास कहण लगे महाराज मेरे तो गलती हो गई, मैनूं नहीं सी पता कि बराबरता किनू किया जाता। विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैठण पए। कहंदे कि तुहाडी दरगाह दे विच बैठण दे लई बड़ा कुछ संसार दे विच कीता जांदा है, तुहानूं खुश करन दे लई बहुत कुछ कीता जांदा है, दान पुण्य सेवा आदि। पर सच्चे पातशाह जी असल गल जेड़ा कि तुहाडे हुक्म नूं भी मनना है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵਹਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੇਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ फिर कहना किता कि परमात्मा ने किसी दे नाल कोई भेदभाव नहीं किया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह के सामने हाथ जोड़ के खड़ गया, कहता महाराज मैनूं नहीं सी पता कि आप दे इन्ने शुभ अते चंगे विचार ने। सतगुरां दी इन्हां सिੱਖਿਆ तो प्रभावित हो के माई दास हमेशा वास्ते साहब सच्चे पातशाह जी दा मुरीद बन गया। ते जदों बाई मंजियां थापियां गई माई दास को भी इन्होंने इलाके का प्रचार स्थापित कर दिता गया कि जाओ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के सिद्धांत को कोने कोने दे विच फैला दे, कोने कोने दे विच फैला दे, ताकि पता लग सके कि मनुखता सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किस प्रकार का दुनिया के वास्ते सेवा का जिहड़ा हुक्म है वो किया। वितकरा जाति तौर पर हमेशा लिए खत्म करने वास्ते माई दास को फिर एक ब्राह्मण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने प्रचारक थापिया से। सहज खेत जमायो सतहों शाबान, कहते कि सहजता दे खेत दे विच अज गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दा सच रूपी जिहड़ा चानण है ओदी शान चलदी पई, क्योंकि सहजता बड़ी सी साहब दे अंदर ते जिहड़ा उन्हां दा मन सी, जिहड़ा उन्हां दा हिरदा रूपी घर सी, उस खेत दे विच अज सहजता दी शान जिहड़ा कोई साहब सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी दे कोल बैठदा है उस शान का आनंद माणदा पिया है। ये बड़ी संघनी अते बड़ी मिठी सहजता बड़ी शान है। ते मैं भी जदों गुरु अमरदास महाराज जी दी वडियाइयां करदा हां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे असीसां दुआवां मैनूं हमेशा नहीं प्राप्त हुंदियां। नेत्र सोई तेरी है कि वो मैदा खान चारे पिंडां सुजियस मन में शब्द प्रवान। कहते कि तेरी रसोई ये हुण लंगर दी गल आ गई। कहने लगे बराबरता तुसीं कीती ते तुहाडे लंगर दे विच ऐसी बरकत है कि दुनियावी जिथे वस्तुआं चलदियां पईयां ने भुखियां वास्ते लंगर दा प्रबंध कीता। उथे मन नूं सतगुरु कहंदे कि मन भी जिहड़ा बड़ा चंचल है, बड़ा कई बारी मन दे राही असीं ऐसे भैड़े ख्याल ले आउंदे हां। कहंदे कि सारा कुछ जदों असीं गुरु दे शब्द नूं अपना लैंदे हां ते साहब जी कहंदे कि मन दा जिहड़ी भुख है वो गुरु दे शब्द दे राही साहब जी दे दर्शन करके उत्तर दी पई। कहते कि लंगर घ्यो मैदा रसोई दे विच 36 प्रकार के भोजन चलते पे ने, पर जदों गुरु की संगत विच बैठते हैं उत्थे एक शब्द रूपी भोजन है। जदों उहनूं अपना लैंदा है ते सारी ही भुख जिहड़ी वो अपने आप खत्म हो जाती। अगे कहते आवा गुण निवारियो कर नदर निशान। आवा गुण तो भाव है जमण वरन दा जिहड़ा गेड़ सी। कहते सतगुरु जीओ तुहाडी शरण दे विच आए
पेट की तृप्ति हो गई, मन भी जिहड़ा तपदा सी वो तुहाडे शब्दां दे राही सच्चे पातशाह जी ये ठंडा ठार हो गया। हुण गल रह गई जन्म मरण दी, ते तुहाडे दर्शन करके तुहाडी मेहर दी नजर जदों साडे उत्ते होई, जन्म मरण दा भी जिहड़ा गेड़ सी मालिका वो ही खत्म कर दिता। अवतरे अवतार ले सो पुरख सुजान, बड़े अवतार हुए, बड़े अवतार आए भी, पर तेरे वर्गा सुजान पुरख जिहड़ा वो नहीं आ सकता। झखड़ वाओ न डोले पर्वत मेरान, कहते कि बड़े झखड़ बड़ा कुछ दुनिया वाले ने किया। गुरु अमरदास जी ने जो गुरु अंगद साहब जी की सेवा करते सन, पर पर्वत दे वांगू ये बिल्कुल अडोल खड़े रहे, डोले नहीं। जे किसी ने मंदा भी कह दिता तां भी अगे चुप करके गल सुनी अणसुणिया कर लिया। कहते झखड़ वाओ न डोले, ते वैसे भी जे मींह हनेरी आ जानी तां भी नहीं सन डोलदे। ना दुनिया दे कहे हुए खरबे बोल सतगुरां नूं डोला सके, ते ना ही देखते कोई मींह हनेरी कोई रस्ते विच चिक्कड़ बनया होया है तां भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं गुरु अमरदास महाराज जी नूं गुरु अंगद साहब जी दी सेवा वाले पासे तो डोला नहीं सन कुछ भी सकिया। झखड़वा डोले पर्वत मेरान, जाने बिरथा जी की जानी हूं जान। कहते कि गुरु दी सेवा तो बिना सब कुछ ही बिरथा। इसे करके सतगुरु जी तुहाडी वडियाई करके मैं भी मालिक सच्चे पातशाह जी तुहाडी नजर दे विच प्रवान हो जाना चाहना। अगे सर कहते क्या सलाही सच्चे पातशाह जान तू सुबड़ सुजान। कहते मेरे कोल कोई लफ्ज नहीं है, मैं की तुहाडी सिफत कर सकां। तुसीं तो पहला ही बड़े सुजान जे, बड़े ही सियाणे जे। सुबड़ सुजान तो भाव है कि गुरु अमरदास महाराज जीओ मेरे कोल सारे लफ्ज खत्म ने कि जिन्हां दे नाल मैं तुहाडी वडियाई कर सकां, क्योंकि तुसीं बड़े सूझवान जे, बड़े सियाणे जे। दान जे दिता सतगुरु भाग सी सो सत्य दान। कहंदे कि इहो जिहा दान दे दे मैनूं कि मैं हमेशा तुहाडे गुण गाउंदा रहां। नानक हंदा छत्र सिर को मत हैरान। कहंदे कि जिवें जिवें मैं गुरु दी को मत तो भाव है संगत। कहंदे कि जिवें जिवें मैं गुरु दी सिफत गुरु दी पुस्तक करदा पिया हां ते मैं हैरान हुंदा जाना हां कि मालिक सच्चे पातशाह उवें उवें अपनी रहमतां दा खजाना मेरे उत्ते लुटाई जा रहे हैं। ऐसे गुरु तो मैं सदा ही कुर्बान जाना। मालिका तेरा धन्यवाद है कि मैं सतगुरु जी तुहाडे कोल बैठ के तुहाडी वडियाई गा रहा। सो टिक्का सो बहना सोई दी बाण प्यो दादे जी वेहा पोतरा तर। कहते कि गुरु नानक साहब जी वर्गा, गुरु अंगद साहब जी वर्गा, हुण गुरु अमरदास महाराज जी दे रूप विच पोतरा सामने आ चुकिया है। कि धरती दुनिया दे विच प्यो पिता अते दाते दी गल कीती गई। वैसे बाबा तेज भांति दे ग्रह लगे साहब सच्चे पातशाह जी दा जन्म इत्थे कहंदे कि प्यो अते दादा गुरु नानक साहब अते गुरु अंगद साहब जी दे वर्गे गुरु अमरदास महाराज जी दे जीवन दे चाल चलन हन। इसे करके दादा जी मैं हमेशा शुक्रगुजार हां कि तुहाडी निगाह दे विच प्रवान हो जाना। गुरु अमरदास महाराज जी ने सेम वही कार्य किए जो गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब महाराज करके गए। सो आज दा पावन शब्द बाबा सत्ता जी ने गुरु अमरदास महाराज जी की वडियाई विच उचारिया और वडियाई विच ऐसे शब्द ऐसे गल्लां कह छड़ियां कि जो कुछ गुरु नानक साहब महाराज का स्वरूप आज तक मैं नहीं तकिया वो अज गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास महाराज जी के विचों तकदा है। तो सतगुरु मेहर कर कि असीं भी सदा साहब की वडियाई करते हुए उन्हां दे गुण गाउंदे हुए शुकराने दे वचों मालिक जी का हमेशा ही कोटान-कोट धन्नवाद करते रहिए। बाणी पढ़दे हुए विचार करते हुए सेवा निभाते हुए व्यर्थ गलतियां भुलां हो गई। साहब सच्चे पातशाह अते गुरु की संगत बख्शण जोग है जी। गलतियां भुलां चुकां दी खिमा बख्शो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।